Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. In the last class we started with lesson number 12, simple machines, right? And we studied various different types of simple machine, right? हमने देखा पहला type of machine what we saw was an inclined plane, and ये example में the thing that you can see in the first picture, this is an inclined plane जिसके through the man he is easily pushing the stone into the truck. Okay, and second one, in the second picture the man is not using an inclined plane, इसलिए यहाँ पे उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, right? And in the third one the girl is not using anything. तो सबसे ज़्यादा easy task इन तीनों picture में से किसका था? We saw that ये जो रवि था, he had chosen the plank A, which is an inclined plane, and it became easy for him to easily just push the stone into the truck. Okay, this is what we saw. So the first type of simple machine that we saw was inclined plane. Then the second type of simple machine that we saw was the wedges. Now what are wedges? A sharp tool. These are all sharp tools, right? And this sharp tool, these are formed on joining two inclined plane. जब दो inclined plane एक साथ join करते हैं हम, उस टाइम एक टूल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज वेज. ओके, एंड वेज को यूज़ कब किया जाता है? वी यूज़ दिस नाइफ, द स्क्रू ड्राइवर्स टू ब्रेक एनी ऑब्जेक्ट इंटू टू पीसेज, राइट, और टू सेपरेट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज स्टक टुगेदर. देन सी दिस इज द X, this is the knife, this is the chisels. These are some of the examples of simple machine that are used as a wedge. Okay, the needle and the nails मतलब हमारा फिंगर का nails नहीं, खिला जो होता है ना, that is also we call as nails. तो वो भी क्या है? They are also a kind of wedges that we use as a simple machine. Okay, now next is a lever. See, अब लीवर में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी. आई होप यू रिमेंबर इस लीवर में 3 ऑर्डर्स होते हैं. तो लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर एंड लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑर्डर में फल्क्रम. नाउ देर आर 3 थिंग्स दैट कम्स अंडर लीवर. वन इज़ द फल्क्रम, सेकेंड इज़ द लोड एंड थर्ड इज़ द एफर्ट. तो अब ये जो 3 ऑर्डर पढ़े थे हमने, इसमें एक बार फल्क्रम कम्स इन सेंटर, in the second one the load comes in center, and in the third order the effort comes in center. Okay, तो अभी अगर हमने ये examples पढ़े थे कुछ for this lever, यहाँ पे क्या लिखा है? फल्क्रम किसको बोलते हैं हम? जो सपोर्ट होता है that is called as फल्क्रम, एंड वो सपोर्ट से आप जिस चीज़ को उठाते हो दैट इज़ द लोड, एंड जहाँ से आप अपना मेहनत लगा रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज एफर्ट. ओके, so see, the support at which the rod of the lever is rested is called as fulcrum of the lever. Can you see? This is the fulcrum in this case. This is the fulcrum. Okay, then this is the effort that the man is applying, and this is the load. Okay, so the weight which is lifted by the lever, or the force against which the lever act, is called the load. This is the load, and this is the effort which the force is applied on the other end of the rod to lift the load, that is called as effort. ओके, अब एक होता है लोड आर्म एंड एक होता है एफर्ट आर्म. लोड आर्म क्या होता है? फल्क्रम. सी, द आर्म ऑफ द लीवर फ्रॉम द फल्क्रम टू द लोड, दिस इज़ द फल्क्रम. फल्क्रम से लोड तक जो आर्म होगा उस आर्म को हम बोलते हैं लोड आर्म, एंड फल्क्रम से एफर्ट तक का जो आर्म होगा दैट इज़ कॉल्ड एज एफर्ट आर्म. ओके, ईजी. देन वी सॉ दिस एग्जाम्पल, एंड जहाँ पे हमने देखा एक पेंसिल रखी, उसके ऊपर एक स्केल रखना है, एंड यू हैव टू प्लेस वन पेपर ऑन इट. तो द पेंसिल विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड हेंस द पेंसिल विल बी द फल्क्रम. Now you are applying the effort on the scale with your finger, so that will be the effort, and you have kept one paper on one side, so that is the load. This is how you will identify what is the fulcrum, what is the load, and what is the effort. Okay, then another example we saw of the bottle opener, right? So fulcrum क्या है? Fulcrum is the opener. Effort is the hand that you are applying the effort to open the bottle. Okay, and load क्या है? Load is the cap of the bottle. Okay, then third examples we saw of tongue. Can you see this one? This is the tongue. What it is called?
टंग्स. ओके, अब टंग्स हम यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए. तो सपोज यू हैव picked up a stone, तो that stone is the load and you are applying your force here, efforts here, right? So this is the effort that you are applying with your hand. And fulcrum क्या हो गया? The tongue is the fulcrum because that is providing the support to the stone that you have kept as a load, right? So we saw the three types of the lever depending on the position of the fulcrum, effort and the load. पहले टाइप में हम फल्क्रम को सेंटर में रखेंगे, दूसरे टाइम में लोड को, एंड तीसरे टाइम में एफर्ट को. सी, फल्क्रम पहले सेंटर में है, लोड एंड एफर्ट ऑन द आइदर ऑफ द साइड. फिर सेकंड इसमें हमने लोड को सेंटर में रखा एंड फल्क्रम एंड एफर्ट ऑन दी बोथ साइड. थर्ड इसमें हम एफर्ट को बीच में रखेंगे, देन द फल्क्रम एंड द लोड ऑन दी अदर साइड. So I hope so that now it is easier for you to remember the lever of the three orders. You can easily remember the three orders of the lever by keeping the fulcrum, effort and the load at the center. Okay, now use your brain power and tell me which are these machines. So some machines we use in our day-to-day life which are shown in the picture here. What is the type of the lever in each of the cases? कौन सा टाइप का लीवर है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, वेदर द फल्क्रम इज इन द सेंटर और लोड इज इन द सेंटर और द एफर्ट इज इन द सेंटर. यू हैव टू टेल दैट. ओके, तो व्हेन यू यूज़ दिस व्हील मशीन, तो यहाँ पे क्या है? सपोर्ट मीन्स फल्क्रम, तो फल्क्रम यहाँ पे है, देन ये लोड बीच में है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन द सेंटर देयर इज़ अ लोड, तो इट मीन्स इट इज़ विच टाइप ऑफ ऑर्डर? इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डर, लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, राइट. अब ये जो आप यूज़ करते हो, यहाँ पे आप लोड लेते हो, यहाँ से आप एफर्ट देते हो, एंड यहाँ पे एक नेल देखोगे आप जहाँ से वो अटैच्ड है दोनों, सो दैट इज़ द सपोर्ट. तो इन दिस केस द फल्क्रम इज़ इन द सेंटर, इट मीन्स इट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर. नाउ ये खेलना सबको पसंद है ना? ये यहाँ पे आप बैठते हो, यहाँ पे आपके फ्रेंड बैठते हैं, एंड देन ये ऊपर नीचे होता है. तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी. द सपोर्ट सिस्टम इज़ दिस वन, राइट. तो फल्क्रम यहाँ पे सेंटर में है एंड हेंस यू विल से दैट इट इज़ द लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. अब जब आप सीजर यूज़ करते हो, ओके, तो लोड कहाँ पे आता है? लोड यहाँ पे है, एफर्ट यहाँ पे है. इट मीन्स ये जो सेंटर में आपको एक पिन दिख रहा है, सो दैट इज़ द फल्क्रम विच इज़ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट. तो यहाँ पे भी लीवर कौन सा टाइप का? बिकॉज द फल्क्रम इज़ इन द सेंटर, द लीवर इज़ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि लीवर कौन से ऑर्डर का है. अगर फल्क्रम सेंटर में आ रहा है तो इट इज़ द लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. अगर लोड सेंटर में आ रहा है तो इट इज़ द लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर. एंड अगर एफर्ट आ रहा है सेंटर में तो इट इज़ द लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ अबाउट द पुली. पुली इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन. Okay, so see, you have to try one experiment. You have to take a pencil, some sticking tape and empty reel of thread. जो थ्रेड होता है धागा, उसके पहले एक कार्डबोर्ड होता है, रोलिंग कार्डबोर्ड, एंड उसके ऊपर धागा लपेटा हुआ होता है, राइट. तो यू हैव टू टेक दैट एम्प्टी रील, एक टेप लेना है, स्टिकी टेप एंड पेंसिल, 1/2 मीटर ऑफ द थिक थ्रेड, a weight such as an eraser that can be tied to the thread, and Play-Doh. You can take the clay also. Okay, so you have to place the pencil on the table. आपको पेंसिल रखना है एक टेबल पे, so that it jutes over the edge of the table. Now you have to fix it firmly to the table using the sticking tape. आपको टेप की हेल्प से उसको चिपकाना है, ओके, टेबल के ऊपर पेंसिल को. नाउ फिक्स करने के बाद you have to insert the reel over the part of the pencil just that jutes out. अब आपने जब स्टिक कर दिया पेंसिल को, अब आपको उसके ऊपर एक क्या रखना है? रील. ओके, ये जो आपने एम्प्टी रील लिया है ना थ्रेड का, वो रखना है. देन पुट अ lump of Play-Doh on the tip of the pencil so that the reel does not come off. अब the reel can come off anytime, so you have to just place a Play-Doh and draw the thick thread having the weight at one end over this reel. So what happens when the loose end of the thread is held and pulled down? The weight tied at the other end gets lifted up, right? जब आप उसको चिपकाओगे, what will happen? जो दूसरे साइड का एंड था, that will come out
So such a device with a grooved wheel and a thread which is designed to lift the weight is called a pulley, and this is how the pulley looks like. Can you see this? ये व्हीलिंग मशीन है ना, ये रोटेट होगी, एंड ये जब रोटेट होता है तो ये जो आपने रोप बांधा हुआ है धागा, वो नीचे आएगा धीरे धीरे, एंड जब आप इसको छोड़ दोगे तो व्हाट विल हैपन, ये पूरा ऊपर चला जाएगा एंड ये नीचे आ जाएगा, रबर आपने जो टाई किया हुआ है, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. एंड आपको पता है हम वेल से, कुएं से पानी निकालते हैं तो वहाँ पे भी तो वो ये पुली यूज़ होता है ना. अब समझो ये रबर की जगह बाल्टी है, ओके, बकेट है. आप क्या करते हो, बकेट को पानी के अंदर डालते हो, फिर इसको खींचते हो. सो वाई, आप उसको खींच क्यों सकते हो? बिकॉज देर इज़ अ पुली. तो जो आप कुएं से पानी निकालते हो ना, दैट इज़ द पुली विच इज़ अ सिंपल मशीन दैट यू आर यूजिंग. ओके, पहले आपको उसका नाम नहीं पता था कि व्हाट इट इज़ कॉल्ड. नाउ यू नो कि जो कुएं से पानी निकालते हैं बीच में ये लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज पुली, एंड पुली इज़ अ सिंपल मशीन. ओके, नाउ हाउ डज इट हेल्प टू अस टू यूज़ अ पुली? पुली हमें हेल्प कैसे करता है? See, if we use a pulley, force can be applied in the downward direction for lifting the weight in the upward direction. अब आप क्या करते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना मतलब पहले आप बाल्टी को अंदर डालते हो कुएं में, उसके बाद पानी भर के आप पूरा वज़न निकालते हो, पानी का वेट लिफ्ट करते हो, राइट? तो आप यहाँ पे इसलिए यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ कन्वीनियंट एंड ईजी, एंड यू मस्ट हैव सीन एग्जाम्पल्स ऑफ पुली इन डे टू डे लाइफ. नाउ कुएं के साथ हम बहुत सारे जगह पर पुली का यूज़ करते हैं. यू हैव टू जस्ट टेक इट एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट. ओके ओके, नाउ कैन यू टेल मी, हैव यू विजिटेड एंड हैव यू सेट इन दिस जाइंट व्हील? ये बहुत पहले धीरे धीरे घूमता है, देन बहुत फास्ट घूमता है, एंड व्हेन यू कम एट द टॉप आपको एकदम डर लगता है ना, राइट? सो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो? दिस इज़ अ व्हील एंड एन एक्सेल. ओके, सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एन्जॉयड सिटिंग ऑन अ जाइंट व्हील. इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? जाइंट व्हील. ओके, सो व्हाट मेक्स द जाइंट व्हील गो राउंड? यस, व्हाट मेक्स इट गो राउंड? See, the giant wheel is fitted to a rod at its center. Can you see? यहाँ पे आपको बहुत सारे rods दिख रहे होंगे. This is a giant wheel. Okay, यहाँ पे सारे झूले लगे हुए हैं. Suppose अब ये कनेक्टेड कैसे आपको दिख रहा है? ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं जो एक सेंटर में जॉइन हुए हैं, राइट? और ये क्या बन रहा है फिर? एक व्हील बन रहा है ना, राइट? सो दिस रॉड, ये जो रॉड एक दूसरे को जॉइन करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेल. And when the axle starts rotating with the help of electricity, the wheel fitted to it also starts rotating. And जब ये axle electricity के वजह से rotate करना चालू करेगा तो what will happen? The wheels will also start rotating and the giant will start rotating. Okay, this is how the giant wheel works. So this combination of an axle and a wheel is a simple machine. And we can see innumerable, means you cannot count it. There are so many examples of this axle and a wheel examples. Okay, axle किसको बोलते हैं हम? This is the giant wheel. ये जो है rods, ये है axle and this is the wheel. तो जब ये एक्सेल को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो उसके साथ ये जो व्हील कनेक्टेड है दैट विल ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग, एंड दिस इज़ हाउ द एक्सेल एंड द व्हील रोटेट्स एंड हाउ द जाइंट व्हील वर्क्स. ओके, नाउ सी, व्हेन द पेडल ऑफ अ बाइसिकल इज़ रोटेटेड द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग, है ना? जब आप बाइसिकल का पेडल को ये करते हो तो उसके व्हील्स जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर कनेक्टेड. अभी हमने क्या देखा, जब एक्सेल को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो एक्सेल स्टार्ट्स रोटेटिंग, जिसकी वजह से द व्हील्स विल स्टार्ट रोटेटिंग, राइट? सो दिस द सेम थिंग हैपन्स विद द बाइसिकल पेडल ऑल्सो. सपोज पेडल जो है, पेडल क्या है? पेडल इज़ द एक्सेल एंड द टायर इज़ द व्हील. तो जब आप एक्सेल, जब आप उसके ऊपर पैर रखोगे, व्हेन यू विल अप्लाई द फोर्स, एक्सेल को आप गोल गोल घुमाओगे, उसके बाद ही तो व्हील रोटेट करता है एंड द बाइसिकल स्टार्ट्स, राइट? सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल इटसेल्फ. ओके, नाउ अभी हमने इतने सारे मशीन्स के बारे में पढ़ लिया, बट डोंट यू थिंक कि मशीन को प्रॉपरली मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है? जैसे हम हमारी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अगर हम थोड़े भी मोटे हो जाते हैं तो वी डू एक्सरसाइज, देन वी मेक अ डाइट प्लान, है ना? हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द मशीन्स ऑल्सो. Okay, so parts of the machines they rub
against one another when they are used. अब हम जो मशीन यूज़ करते हैं ना, अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो व्हाट विल हैपन, जो सारे मशीन के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को रब करेंगे, राइट. सॉइल्ड डस्टी पार्ट्स क्रिएट मोर फ्रिक्शन एंड सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय वेदर, रस्ट एंड इरोड. तो आपको पता होगा अगर कोई बड़े बड़ी मशीन्स होते हैं तो उनको हर 6 महीने में हमें उनको ये करना होता है, एक बार उनका चेकअप करवाना होता है. जैसे हम खुद के बॉडी का चेकअप करवाता है ना, वैसे ही वी हैव टू once in 6 month we have to check that machines also, because machines कभी कभी वेदर के वजह से उन पे जंग लग सकता है, रस्ट आ सकता है, ओके, ग्रीसी सॉल्यूशंस लग सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे मशीन जो है इट कैन डिस्ट्रॉय लेटर. ओके, सो मशीन गेट्स डैमेज्ड और बिकम यूजलेस ड्यू टू सच वेयर एंड टेयर. वेयर एंड टेयर कब होगा? when the parts of the machine will rub against each other. So to avoid this it is very important to take care of the machine. अगर हमें हमारे मशीन को अच्छे से यूज़ करना है बहुत टाइम तक एंड वी वांट आवर वर्क टू बी डन ईजिली, तो हमें उसको उसके वेयर एंड टेयर से बचाना है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ मशीन्स. ओके, सो ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वाइप्ड आउट. जब आप उसका मेंटेनेंस करवाओगे once in 6 month, उसके सारे पार्ट्स को एक बार क्लीन किया जाएगा. ओके, सो ऑयल और लुब्रिकेंट इज रिलीज्ड बिटवीन द पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर सो दैट देर इज़ लेस फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड वेयरिंग इज़ रिड्यूस्ड. तो जब वहाँ पे आप देखोगे जब वो एक दूसरे से रब होंगे ना एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वहाँ पे ऑयल या लुब्रिकेंट रिलीज़ होगा उन दोनों के बीच में, जिससे क्या होगा? लेस फ्रिक्शन होगा. लेस फ्रिक्शन मतलब वो मशीन फिर अच्छे से वर्क नहीं करेगी एंड मशीन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगी. ओके, सो द मशीन्स दे आर कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट द डस्ट सेटलिंग ऑन देम. आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी जाते हो एंड अगर कोई भी वहाँ पे मशीन यूज़ हो रहा होता है, व्हेन दे आर नॉट यूजिंग इट they just put the cover on it, right, ताकि जो बाहर से डस्ट उड़ के आ रहे हैं वो डस्ट मशीन के पार्ट में ना जाए, राइट. सो टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ द वेदर मेटेलिक पार्ट्स इन एन मशीन आर पेंटेड एक्सटर्नली. अब हाउ कैन यू सेव द मशीन? आप चाहते हो कि उसके ऊपर जंग ना लगे मेटेलिक पार्ट्स पे, वेदर के वजह से वो ख़राब ना हो, इसलिए हम उनको कलर कर देते हैं बाहर से. एंड द मशीन्स दे आर ऑलवेज केप्ट ड्राई. मशीन में कभी पानी नहीं होना चाहिए. मशीन्स आर ऑलवेज केप्ट ड्राई. ओके, हमारे साइकिल पे भी जब जंग लगती है तो हम क्या करते हैं? हम उसको कलर कर देते हैं ना, ताकि वो अच्छे से हो जाए, फिर से नई जैसी दिखे. सो सेम थिंग वी डू विद द मशीन, बिकॉज एक बार मशीन पे जंग लग गया तो वो धीरे धीरे ख़राब ही होगा. ओके, सो वी मस्ट प्रिवेंट ओके दैट फ्रॉम रस्टिंग एंड ऑल. सो दिस इज़ हाउ वी use various colors and we do maintenance every 6 months. Okay, now do you know that the big factories they have a separate department for maintenance of machine. अब because जो बड़ी बड़ी कंपनीज है they can't take a risk, अगर एक दिन भी मशीन ख़राब होगी तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इसलिए दे आर हैविंग अ सेपरेट टीम जो सिर्फ मशीन के मेंटेनेंस पे ही काम करते हैं. ओके, सो फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड एट रेगुलर फिक्स्ड पीरियड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन. तो सिर्फ मेंटेनेंस के वजह से फैक्ट्रीज़ को बंद किया जाता है ताकि सारे मशीन्स को रिपेयर किया जाए, सारे मशीन्स को मेंटेन किया जाए एंड सारे मशीन्स को क्लीन किया जाए. सो द ऑन दी हॉलीडे जब भी फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं उनको हॉलीडे होगा, मेंटेनेंस वर्क इज़ डन ऑन दैट डे इटसेल्फ. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ़ द मशीन्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड दे विल बी ऑफ नो यूज़ व्हेन वी एक्चुअली नीड देम. अगर हमने मशीन को मेंटेन नहीं किया तो जब आपको ज़रूरत होगी ना तो आपको पता चलेगा कि इस पर तो रस्ट हो गया है, डस्ट सेटल हो गया, नाउ द मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ओके, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने मशीन्स के ऊपर, सो दैट वेन एवर यू नीड इट इट विल फंक्शन प्रॉपरली. एंड बिफोर वी यूज़ अ मशीन वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली सो दैट देर आर नो एक्सीडेंट्स. ओके, तो आप कोई भी मशीन अगर पहली बार ऑपरेट करने जा रहे हो यू शुड ऑलवेज़ हैव अ लुकआउट कि वो मशीन को आप कैसे यूज़ करोगे. अगर आपने गलत तरीके से यूज़ कर लिया तो वी मे फेस अनदर कॉन्सिक्वेंसेज विच मे नॉट बी गुड फॉर अस. हाँ, इसलिए आप कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन को यूज़ करने जाओगे पहले आपको उसको सीखना चाहिए कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है. ठीक है, नाउ सी व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेसन सिंपल मशीन्स. सी वी सॉ दैट मशीन्स हम क्यों यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग मशीन
for reducing our efforts and for doing more work in less time. कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, इसलिए ही हम मशीन्स यूज़ करते हैं, राइट. सम मशीन्स आर सिंपल वाइल सम आर कॉम्प्लेक्स. अगर मैंने आपको नेल कटर यूज़ करने दिया तो यू कैन यूज़ दैट ईजिली. मेरे को आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ टू यूज़ इट. बट इफ़ आई गिव यू द scooter or the bicycle, I will have to teach you first how you will ride it and then only you will ride, right. तो जो nail cutter है, nail cutter is the simple machine, while the scooter, it is a complex machine because you don't know how to do it and there are many functions which you should know of the scooter. Okay, then we saw the wedges, the lever, the inclined plane, the pulley and the wheel and the axle. We studied about all of them and we studied some of the examples also with respect to each and every one, right. So and we saw that these are the examples of simple machine. And हमने जब लीवर पढ़ा था तो वी सॉ दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर विच आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम. तो फर्स्ट वाले पोजीशन में द फल्क्रम कम्स इन द सेंटर, सेकेंड वाले पोजीशन में द लोड कम्स इन द सेंटर एंड थर्ड वाले पोजीशन में द एफर्ट कम्स इन द सेंटर. ओके, एंड वी सॉ दैट द मशीन्स दैट वी यूज़ रेगुलरली शुड बी मेंटेन्ड, है ना. मेंटेनेंस ज़रूरी है मशीन का. So machine should be maintained properly to keep them in good working condition. Because अगर आपने मशीन का मेंटेनेंस नहीं रखा तो whenever you will need it at urgently, whenever you will need it, you will come to know कि मशीन चल रहा ही नहीं है, आप क्या करें. So it is very important to have the maintenance of each and every machines that you have at your home. वरना क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा या कुछ और हो जाएगा, वो टूटा हुआ होगा, it will not work out properly, है ना. इसलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर मशीन्स. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच आर कवर्ड इन दिस लेसन. ओके, सो वी आर डन विद द लेसन. थैंक यू एवरीवन.